The start. IGCSE paper 1 multiple choice May June 2024 variance 12. Question number 1. Which statement about gases is correct? So gases का जो particles हैं उनकी irregular arrangement होती है, they are very far away from each other और वो continuous random motion के अंदर exist करते हैं. First option, gases are difficult to compress. By the way, gases are easier to compress. Which means option A is incorrect. The particles in gases are close together. By the way, particles are very far away from each other. Option B is incorrect. The particles in gases have random arrangement. That's true. Next option. The particles in gases move slowly. They move randomly. Right? So option D is incorrect. And therefore C is going to be the right answer. A sample of argon gas is heated in a closed container. So technically, we are heating the gas. As a result, temperature rises. So kinetic energy also increases. Number of collisions increases in a unit time. With the wall of the container. और हम सब जानते हैं कि whenever particles collide with the wall of the container, they exert pressure. All right. So as we increase the temperature, particles exert the pressure, which means pressure increases. And examiner is looking for the size of the argon atom. So size will remain same. And therefore D is going to be the right answer. Which statement is correct? Air is a mixture of gaseous element only. Not element only. Air also contain molecules. So first statement is incorrect. Second, alloys are formed when metal is ionically bonded. By the way, alloys are the mixture of metals. So they exhibit metallic bonding only, not ionic bonding. Which means option B is incorrect. Carbon dioxide is a mixture of carbon and oxygen. By the way, carbon dioxide is not a mixture. Carbon dioxide is a molecule, is a compound. Option C is incorrect. And obviously D is going to be the right answer. Potassium bromide is an ionic compound. That's true. Why? Because potassium is metal. Bromine is non-metal. When metal and non-metal combine together, then ionic compound is formed. Next question, which row identifies methods of testing the purity of a compound? So for purity, we'll go for three things. The first one is melting point. अगर कोई भी सब्सटेंस फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होता है तो वो प्योर है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अगर कोई भी सब्सटेंस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है तो वो प्योर होगा. इसका मतलब ये भी ठीक है. और प्योरिटी डिटरमिन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी भी यूज करते हैं.
तो क्रोमेटोग्राफी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। क्वेश्चन नंबर 5, which row shows the number of protons, neutrons, and electrons in the ion. Uh, this ion has a 2 minus charge, which means it will gain 2 electron. Proton number is 8, which means it has 8 proton. Mass number is 18. So this particle has 8 proton. 2 minus charge की वजह से 10 electrons हो जाएंगे, and 18 minus 8 becomes 10 neutrons, right? So it has 8 protons. It has 10 electrons. It has 10 neutrons. So right answer is going to be D. Isotopes of the same element have some features that are same. So what features they are same? They have same atomic number. That indicates they have same number of protons and electrons also. And they have same number of valence electron also. Because let's suppose आपके पास कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 12, एक होता है 13 और एक होता है 14, राइट? अब आप नोट करें ये तीनों के तीनों कार्बन जो है वो ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, इसका मतलब इन सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 और एक 37, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, व्हिच इज व्हाई इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? लेट्स टॉक अबाउट ब्रोमीन। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, मास 79, दूसरा आइसोटोप जो है उसका मास 81, दोनों के दोनों ब्रोमीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, व्हिच इज व्हाई दे कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, एंड सम दैट आर डिफरेंट। सो कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है? न्यूक्लियॉन नंबर आर डिफरेंट, राइट? वी नीड टू फॉलो दिस की जो सेम होगा उसको चेक, जो डिफरेंट होगा उसको क्रॉस। तो जाहिर सी बात है नंबर होते हैं, सेम प्रोटॉन नंबर होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। The electronic configurations of 4 atoms are shown. Which atom form an ion with a charge of 2 minus when they react? Okay, so that's very clear. मैंने क्लास में आपको बताया है कि जब चार्ज किसी भी एलिमेंट का 2 माइनस है तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और यकीनन उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए गेन किए ताकि वो अपने बैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले। सेकेंड थिंग मैंने ये बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट ने 2 माइनस चार्ज कैरी किया है तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ग्रुप 6 का होगा, एंड दैट इंडिकेट्स कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल होंगे, जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। सो मुझे ये देखना है कि किस एलिमेंट के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप नोट करें ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं और दोनों एलिमेंट जो हैं उनका चार्ज 2 माइनस होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, and therefore C is going to be the right answer because X or Z both are found in the same group of the periodic table. Both of them have same valence electrons, which is why octet follow करने के लिए they will gain 2 electrons, so both of them will carry 2 minus charge. I hope it makes sense to you. Next question, question number 8. Which statement about bonding is correct? All the atoms in methane, ammonia, water molecule have noble gas electronic configuration. That's true. Why? Let me show you. ये मीथेन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे 10। सो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अमोनिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे 10। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2,
सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. नाउ द थर्ड मॉलिक्यूल इज वाटर. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन इज 1, मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास? 2. और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है? एग्जैक्ट यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नियॉन एटम की भी तो है, क्योंकि इस नियॉन एटम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नोबेल गैस की है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम मॉलिक्यूल्स की भी है, because of the same number of electrons, which is why first option is correct. So right answer obviously is going to be Na. हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ए आंसर आ गया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है. कैल्शियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज कैल्शियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं आयनिक कंपाउंड बनते हैं. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन, ग्रुप 1 मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स. बाय द वे ग्रुप 1 मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करते, loses electron. Okay, इसलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. Oxide ion in calcium oxide are positively charged. When we say oxide ion, इसका मतलब इसका चार्ज होगा 2 माइनस, और जब चार्ज 2 माइनस होगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे. सो लेट सपोज आपको इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन आपको क्लिक नहीं होती, आप ये सारी एनालिसिस नहीं कर पाते, तो आप क्या करते? आप जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन, इनको आप रॉन्ग ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते, तो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती. ये भी एक तरीका होता है इसका काम करने का. अगर आपको ये एनालिसिस नहीं समझ में आती, ये अप्लाई करना नहीं आता, तो आप भाई जो गलत है उनको डिटरमिन कर लीजिए, सही होगा वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा. Which statement about diamond is correct? So by the way, diamond has a giant covalent structure. So that's true. Consists of carbon atoms only. That's true. Each atom is bonded to 4 other carbon atoms. That's also true. ये बात मैंने आपको डायग्राम से प्रूव करके देनी है. मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको, देखिए. आप नोट करें, ये आपके पास कार्बन एटम है, एंड दिस कार्बन एटम इज ज्वाइंड विद 4 other carbon atoms. 1, 2, 3, and this one is 4. And all of them exhibits covalent bonding, as you can see in the structure. So right answer I believe is going to be an A. बाकी भी देख लेते हैं. It has a giant covalent structure, that's true, consisting of flat sheets, which is wrong. Flat sheets जो हैं वो graphite में होती हैं. Structure held together by ionic bond, that's incorrect. Covalent bonding होती है. Structure held together by ionic bond, that's incorrect. Covalent bonding होती है. Let's move on to the question number 10. Which row shows the correct formula of lead to bromide and butane? By the way, lead to bromide we have done, butane we have done in the syllabus. So lead to bromide का फॉर्मूला होता है PbBr2, और ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है. ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10. ब्यूटेन इज बेसिकली एन एल्केन. इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो C4H10 यहाँ पर भी है, C4H10 यहाँ पर भी है, तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी. Next is calcium phosphate forms when calcium chloride and sodium phosphate solution react together. Which value of x and y balance the equation? By the way, let me write the equation again. CaCl2 plus Na3PO4 arrow 2Ca3PO4 taken 2 plus 12 NaCl. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करो, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? 6. सो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 6 लगाऊंगा. यहाँ टोटल क्लोरीन कितने हो गए? 12. यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं? 12. यहाँ सोडियम कितने हैं? 12. तो सोडियम को 12 करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा. ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. बाय द वे ये आपका x है विच इज 6, और ये आपका y है विच इज 4. सो x 6 होना चाहिए, y 4 होना चाहिए, एंड सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. Question number 12. What is the definition of relative molecular mass?
इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर देते हुए बताई थी। सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस in a compound, and that's a fact. So this fact is given in option C, and so C is going to be the right answer. Okay. In an experiment, molten compound is broken down using electricity. Which row identifies the negative electrode? By the way, negative electrode is cathode. Okay. General name for the molten compound? Electrolyte, obviously, because वो तमाम substances जो कि electricity conduct करते हैं उनको electrolyte कहते हैं. Process is called electrolysis. तो electrolyte जो है वो molten compound का नाम होगा और negative electrode जो है वो cathode होगा. तो right answer is going to be C. Hydrogen oxygen fuel cell can be used to power vehicles. What produced by the fuel cell? By the way, fuel cell is an electrochemical cell. An electrochemical cell converts chemical energy into electrical energy. So इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर ऑलवेज स्टीम इज फॉर्म. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो वाटर बनेगा, ये भी ठीक है, बट इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं बनता. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट and therefore D is going to be the right answer. 3 reactions are described. An acid is added to substance H, rapid fizzing happens and the temperature decreases. जब temperature decrease होता है और फिर increase होता है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. और ये जो रैपिड फिजिंग है ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हो रही होगी या फिर ये हाइड्रोजन गैस के थ्रू होगी. इसका मतलब ये जो सब्सटेंस H है या तो ये कोई कार्बोनेट होगा या फिर ये कोई एसिड होगा. ओ सॉरी, एसिड से तो रिएक्शन कर रहे हैं. या फिर ये कोई मेटल होगा. सही है. अगर ये मेटल इस एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. अगर ये कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. बहरहाल इन दोनों केसेस में रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो और डिक्रीज हो तो एक्सो होता है और जब टेम्परेचर डिक्रीज होकर इंक्रीज हो जाए तो एंडो होता है. ठीक है. नेक्स्ट. When substance J is ignited, it produces large quantity of heat. By the way, when large quantity of heat is produced, that means reaction is exothermic. When substance K slowly react with air, air में हमेशा क्या होती है? ऑक्सीजन. और जब ऑक्सीजन के साथ K का रिएक्शन होगा तो इट गोइंग टू बी कंबस्शन. और कंबस्शन हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. जब एनर्जी रिलीज होती है जो कंटेनर है वो वार्मर हो जाता है, वार्म हो जाता है. तो आप नोट करें ये वार्म कह रहा है, इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है. वो क्वेश्चन कर रहे हैं विच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. सो ओनली वन इज एंडोथर्मिक. ये भी गलत, ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, ओनली वन. नेक्स्ट. विच of the processes produce a physical change? Physical change, no new thing is formed, no new substance is formed.
सही है, यानी स्टेट चेंज होगी बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड इज आल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल चेंज होगा. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बट व्हाई बी इज करेक्ट इसको देख लो. ये तुम्हारे पास है सोडियम क्लोराइड, एंड ऑब्वियसली ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तुम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में प्लेस करोगे तो ये डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस सोडियम आइन एंड एक्वस क्लोराइड आइन. सो इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले भी सोडियम क्लोराइड था, अभी भी सोडियम क्लोराइड ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सॉलिड था और अब एक्वस है. तो इसका मतलब इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, which is why B is going to be the right option. Oh God. Okay. Next question. A known mass of gaseous ammonia and excess gaseous hydrogen chloride react together to make solid ammonium chloride. So भाई आपके पास रिएक्शन हो रहा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, that is NH4Cl. Line X shows the total mass of ammonium chloride produced over time. Okay. The reaction is repeated at a higher pressure. All other conditions are kept same. So अगर सारी की सारी कंडीशन सेम है तो इसका मतलब जो दो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए हैं एक्स एंड वाई, उन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम मास इज प्रोड्यूस्ड. ओके. वो कह रहे हैं लाइन वाई शोज द टोटल मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस ओवर टाइम एट हायर प्रेशर. याद रखना कि जब प्रेशर हाई होता है सो रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होता है. और जब रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है कर्व मोर स्टीपर होता है. राइट. सो इन दैट केस इन दोनों में मास डिफरेंट है. ये गलत. इन दोनों में भी मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिफरेंट है, तो सी भी गलत. नाउ कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि यहां पर भी सेम मास है अमोनियम क्लोराइड का और यहां पर भी सेम मास है अमोनियम क्लोराइड का. अब इशू ये है क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. तो जो y है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, उसका कर्व मोर स्टीपर होना चाहिए. सो y हैज मोर स्टीपर कर्व. Then X, which is why D is going to be the correct option for us. इसमें जो X है उसका मोर स्टीपर कर्व हो गया है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि Y का टेम्परेचर Y का प्रेशर ज्यादा है. ठीक है. और इसमें लेस स्टीपर आ रहा है, दिस इज लेस स्टीपर. Which is why B is incorrect. Okay, I hope it makes sense to you. Question number 18. The equation for the hydration of anhydrous copper 2 sulfate is shown. By the way, ये white होगा because ये anhydrous है, और जब ये hydrated हो जाएगा तो ये blue हो जाएगा. तो ये हो जाएगा white to blue. Right answer is going to be B. Very straightforward question. Which of the reaction shows the underlying substance being reduced? Reduce देखना है. So आप note कीजिए
कॉपर ऑक्साइड में कॉपर हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2+, whereas in copper metal it has an oxidation state of 0. So copper is being reduced. Because oxidation state decreases, right? So first statement is right. Magnesium has an oxidation state of 0 because element hai. In magnesium oxide, it has an oxidation state of 2+. So magnesium is being oxidized क्योंकि increase in oxidation state हो रहा है, right? Hydrogen chloride. Hydrogen has a charge of +1, chlorine has a charge of -1. यहाँ पर भी hydrogen +1, chlorine -1. So no change. आप ये भी कह सकते हैं कि it is an acid base reaction. मैंने कैसे जज किया? मैंने जज इस तरह से किया कि ये एसिड है और ये बेसिक ऑक्साइड है, व्हिच मींस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो नहीं करता. ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और क्लोरीन की वो दोनों सेम है. So there is no change in the oxidation state of hydrogen and chlorine, which is why it is not redox, it is not oxidation, it is not reduction. तो आप इस सेंस में आंसर देना चाहते हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सेंस में, it doesn't make any difference. बहरहाल थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन है, and so only one is correct. B is going to be the right answer. Question 20. 4 different solutions are separately tested with blue litmus and with methyl orange. Each solution is known to either acidic or alkaline. The results are shown. By the way, अगर blue litmus red हो रहा है तो इसका मतलब ये acidic solution है. अगर methyl orange red हो रहा है तो ये भी acidic solution है. अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो इसका मतलब एसिडिक. येलो हो रहा है तो एल्कलाइन. ब्लू हो रहा है तो ये अल्कलाइन ही रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है उसने उसका कलर चेंज नहीं किया. येलो है तो इसका मतलब ये भी अल्कलाइन होगा. इट विल रिमेन ब्लू, इसका मतलब ये अल्कलाइन ही है क्योंकि लिटमस का कलर चेंज नहीं कर रहा. ये येलो हो गया, इसका मतलब ये भी अल्कलाइन है. सो सोल्यूशन 3 और सोल्यूशन 4 दोनों अल्कलाइन है. ये बात सिर्फ डी में लिखी है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बट सोल्यूशन 1 एसिडिक है और सोल्यूशन 4 जो है वो अल्कलाइन है. और ये लिख रहा है एसिडिक, इसका मतलब ये गलत. सोल्यूशन 1 एसिडिक है और सोल्यूशन 2 अल्कलाइन है. नहीं, सोल्यूशन 2 जो है वो एसिडिक भी है. ये लिखा हुआ है ना, एसिडिक भी है, अल्कलाइन भी है, एसिडिक दोनों है, तो इसका मतलब बी भी गलत. सोल्यूशन 3 अल्कलाइन है, 4 अल्कलाइन है. एग्जामिनर इज सेइंग एसिडिक. गलत. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. Which statement about sulfur dioxide or calcium oxide is correct? By the way, sulfur dioxide is a gas and obviously an acidic gas. Calcium oxide is basically a basic oxide. So calcium oxide is an acid. Wrong. It is a basic oxide. Option A is incorrect. Calcium oxide turns thymolphthalene yellow. So thymolphthalene कभी भी येलो शो नहीं करता, ये हमेशा ब्लू शो करता है इन एल्कलाइन मीडियम. ओके, सो ये भी गलत. Sulfur dioxide is a base. Sulfur dioxide is basically an acidic gas. So right answer is going to be D, because sulfur dioxide is an acidic gas. Thymolphthalene एक इंडिकेटर है, क्लास में मैंने बताया आपको. एल्कली के अंदर इसका कलर ब्लू होता है
और एसिड के अंदर इसका कलर कलरलेस होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, इसलिए वो कलरलेस शो करेगा थाइमोथैलीन को। ये स्टेटमेंट ठीक है। Which substances can be used to make pure crystals of sodium sulfate? यार सोडियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है मेरे पास कि मैं सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा लूं और इस तरह से मुझे सोडियम सल्फेट मिल जाए और मैं उसके प्योर क्रिस्टल्स डिटरमिन कर लूं। सही है। और दूसरा तरीका है मेरे पास टाइट्रेशन, जिसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवाऊं और टाइट्रेशन के थ्रू जो है वो मैं ये दोनों डिटरमिन करूं, आई मीन सोडियम सल्फेट बना लूं। सो ये वाला ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये तो ऑप्शन कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। और ऑप्शन डी इसलिए भी गलत है क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इट गिव्स यू अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ pH 7। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने आपको लिख के दी हुई है। ठीक है, ओके। और जाहिर सी बात है मैं प्रेसिपिटेशन मेथड यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है। या तो मैं ये मेथड यूज करूंगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक। Which statement describe changes that occurs from left to right across a period of the periodic table? Periodic table is elements are arranged in order of increasing atomic number, so that's a statement is true. Metallic character of the element decreases, so from left to right across a period metallic character decreases because left hand side पे metals होते हैं, right hand side पे non metals होते हैं, that's true. The physical state of the element changes from gas to solid, that's absolutely incorrect क्योंकि periodic table में left hand side पर metals हैं और metals solids हैं और right hand side पे non metals हैं और non metals बहुत सारे gases हैं। सही, तो that's the difference। ठीक है, तो ये gas to solid नहीं हो सकता, it must be solid to gas। 1 and 3 option is correct, sorry 1 and 2 option is correct, therefore B is going to be the right answer। ठीक है, तो ये थर्ड गलत हो गया। 24 part of the periodic table is shown most reactive non metal। भाई most reactive भी कह रहा है और non metal भी कह रहा है, तो ये metal है गलत, ये भी metal है गलत, ये नोबल गैस है अनरिएक्टिव है ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। नोबल गैस इनर्ट होती है, ये मेटल है इसलिए गलत, ये भी मेटल है इसलिए ये भी गलत। सही, और ये क्या है आपका? ये नॉन मेटल है, ऑब्वियसली ओनली नॉन मेटल, तो ये रिएक्टिव भी होगा। सही, सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 25। An alloy contains aluminum, copper, magnesium, manganese, silver, and zirconium. Which row identifies the number of transition elements? Okay, examiner is looking for the number of transition elements. So here copper is a transition element, manganese is a transition element, silver is a transition element, zirconium is a transition element, total 4 transition elements है। So ये आंसर होगा। और क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? And the relative densities of the transition element compared to sodium. So compared to sodium, relative densities always greater than sodium, तो हायर होनी चाहिए डेंसिटीज, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली एन ए। तो 1 2 3 4 एल्यूमिनियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, मैग्नीशियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, which statement about halogens and their compounds is correct? The color of the element gets lighter
इट इज रॉन्ग, डार्कर, क्योंकि आयोडीन ब्लैक होता है, एस्टेटीन भी ब्लैक होता है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप डार्कर होता है, और ये बात लिखवाई है मैंने आपको नोट्स में। द एलिमेंट्स गेट्स लेस डेंस, लेस डेंस तो नहीं होता भाई, मोर डेंसर होता है। क्यों मोर डेंसर होता है, जरा गौर से सुने। डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब ए आर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, because mass and density both are directly proportional to each other. So down the group relative atomic mass increase हो रहा है, in short mass increase हो रहा है, तो density भी increase होगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है जनाब, नेक्स्ट, when chlorine is added to sodium iodide, iodine is formed, that's true। और इसका रिएक्शन हमने इस तरह से करके दिया है आपको, सोडियम आयोडाइड है आपके पास, आप क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन। ये इक्वेशन हमने क्लास में की है, व्हिच मींस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन डी क्यों गलत है देख लेते हैं। आयोडीन इज एडेड टू सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, ब्रोमीन इज फॉर्म, दैट्स इनकरेक्ट, बिकॉज आयोडीन is less reactive than bromine। इसका मतलब रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन 27, which row describes an elements in group 8 of the periodic table। so group 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल गैस हैं, और नोबल गैसेस का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, बिकॉज दे यूजुअली फॉलो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, एंड दे एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक स्टेट। सो मोनोटॉमिक ये है। अच्छा, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का लो है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। मैग्नीशियम reacts with dilute hydrochloric acid, that's an easy thing। so it will turn to magnesium chloride and hydrogen gas, obviously hydrogen gas produce हो रही है, तो right answer is going to be C, because examiner is looking for the gas given off in this reaction। 29, which statement about aluminum is correct? Okay, aluminum is easy to extract from its ore because it is near the bottom of the reactivity series, near the bottom, that's incorrect, higher up in the series, which is why option A is incorrect। Aluminum is formed when aluminum oxide is heated with carbon, is heated with carbon is wrong, because aluminum is reactive, इसलिए वो कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, दैट्स ट्रू, और इसी बॉक्साइट ओर के थ्रू हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। हेमाटाइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, hematite is not an important ore of aluminum, it is an important ore of iron, so this statement is also incorrect, and therefore C is going to be the right answer। which statement shows that liquid is pure water? whenever we talk about pure water, दो चीजें ध्यान में रखना, boils at fixed temperature of 100 degrees Celsius and freezes at fixed 0 degrees Celsius। So right answer is going to be A,
which compound can be added to ammonium sulfate to make NPK fertilizer? देखो यार, इस अमोनियम सल्फेट से I'll get नाइट्रोजन. सो NPK फर्टिलाइजर बनाने के लिए I need पोटेशियम and I need phosphorus. So I need these two elements now. नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है, सो मुझे यहां से नाइट्रोजन मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे तो पोटेशियम और फॉस्फोरस चाहिए. मुझे यहाँ से पोटेशियम मिल रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन मिल रहा है, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. मुझे यहाँ से पोटेशियम मिल रहा है, मुझे यहाँ से फॉस्फोरस मिल रहा है. Ouch. नहीं, हम कुछ इस तरह से इसको कर लेते हैं, एक मिनट. ये देखिए, मुझे यहाँ से फॉस्फोरस मिल रहा है बट नाइट्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए ये भी गलत. यहाँ से मुझे पोटेशियम मिल रहा है बट नाइट्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज वाई इट इज ऑल्सो करेक्ट इनकरेक्ट. मुझे पोटेशियम मिल रहा है, मुझे फॉस्फोरस मिल रहा है, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. मुझे यहाँ से नाइट्रोजन मिल रहा है लेकिन ना फॉस्फोरस मिल रहा है ना पोटेशियम, विच इज वाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो इसका मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को मिक्स करूंगा तो मुझे एनपीके फर्टिलाइजर मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एसेंशियल एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे. 4 gases found in air are listed: carbon dioxide, carbon monoxide, methane, sulfur dioxide. Which gases leads directly to global warming? Directly to global warming. So दो gases हैं जो कि डायरेक्टली लीड करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन. तो 1 and 3. So right answer is going to be an A. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 33. The structure of 4 organic compounds are shown. आप नोट कीजिए, ये आपके पास OH है, इसका मतलब इट इज एन अल्कोहल. आप नोट कीजिए, ये आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसका मतलब इट इज एन एल्कीन. आप नोट कीजिए, आपके पास ये OH है, इसका मतलब इट इज एन अल्कोहल. आप नोट करें, इट इज एन एल्केन बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है ये. Examiner is looking for an answer in which compounds of the same members of the homologous series belongs to. So 1 and I believe 3, both of them are alcohol, 1 and 3. So right answer is going to be C. Question 34. Which statement about propenes are correct? Okay, propene. So guys, propene का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं. ये स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए आपको. ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है प्रोपीन का. वो कह रहे हैं प्रोपीन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड. नहीं जी, प्रोपीन में सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड भी होता है. अगर आप देख सकते हैं, बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है. सो ओनली की जो टर्म है ना वो गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड, प्रोपीन decolorizes aqueous bromine since it is an unsaturated hydrocarbon. So unsaturated hydrocarbon do decolorize aqueous bromine. So that statement is correct. Propene is obtained by cracking of through large alkanes. That's also true. Propene is a hydrocarbon. That's also true because it consists of carbon and hydrogen only. So 2, 3, and 4 is correct. The right answer is going to be C. Petroleum is a mixture. Which method used to separate petroleum into its components? So जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल से अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स डिटरमिन करने होते हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. D is going to be the right answer. Question 36. The equation for the reaction that produces ethanol is shown. So ethene और steam का जब रिएक्शन होता है, ethanol बनता है. Ethene is basically an alkene. An alkene undergoes addition reaction. और हमने इसको स्पेसिफिकली नाम दिया था हाइड्रेशन. सो एडिशन और हाइड्रेशन दो नाम दिए थे. एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स. या तो एडिशन या हाइड्रेशन. हाइड्रेशन है नहीं, एडिशन अवेलेबल है. राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. ओके. 37. 4 स्टेटमेंट्स अबाउट इथीन और पॉलीथीन आर लिस्टेड. सबसे पहले तो इथीन का स्ट्रक्चर देखिए. इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक एल्कीन है, बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है.
और जब इससे पॉलीथीन बनेगा विच इज अ पॉलीमर, सो ये आपका मोनोमर है, डबल बॉन्ड है इसमें। ये आपका पॉलीमर है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। चेक कर रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड। अब वो कह रहे हैं आपसे पॉलीप्रोपीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एडिशन रिएक्शन, दैट्स ट्रू। क्योंकि जब इस इथीन की एडिशन पॉलीमराइजेशन की जाती है तो फिर आपको पॉलीमर मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, इथीन इज अ मोनोमर, दैट्स आल्सो ट्रू। पॉलीथीन इज अ मोनोमर, नो इट इज रॉन्ग, इट इज अ पॉलीमर, ये भी गलत। Polyethene decolorizes aqueous bromine. Polyethene decolorizes aqueous bromine. That's incorrect because polyethene is a saturated hydrocarbon. Cannot decolorize aqueous bromine. So 1 and 2, right answer is going to be an A. Seawater contain dissolved calcium chloride. Okay. Which method is used to obtain pure water from seawater? Obviously distillation, we have done that in class. So अगर मुझे एक लिक्विड को एक सॉलिड और लिक्विड के पिक्चर से सेपरेट करना हो तो आई विल गो फॉर द डिस्टिलेशन, ओके, इफ यू रिमेंबर दैट। Which piece of apparatus is used to measure exactly 21.4 cm3? ये वॉल्यूम मेजर करना है। ये वॉल्यूम हम बीकर से मेजर नहीं कर सकते और पिपेट से भी मेजर नहीं कर सकते, और दोनों की रीजन सेम होती है, नो ग्रेजुएशन मार्क। ऐसा कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता दोनों पे कि ये वॉल्यूम मेजर कर ले, 0.4 cm3 मेजर कर ले या 21.4 cm3 वॉल्यूम मेजर कर ले। सो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ब्यूरेट एंड मेजरिंग सिलेंडर, दोनों पे ग्रेजुएशन मार्क होती है, दोनों ये वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ब्यूरेट is more accurate apparatus than measuring cylinder. तो अगर मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करना होगा तो आई गो विद द ब्यूरेट। C is going to be the right answer. Last question, question number 40. An aqueous solution of compound M is tested. The results are shown. A lilac color in the flame test. Lilac shows potassium ion. And white precipitates when tested with identified barium nitrate. So when you add barium ions, और सॉल्यूशन में आपके पास सल्फेट आयंस होंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बनाएंगे, और इस बैरियम सल्फेट के आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे। सो एग्जामिनर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सल्फेट आयंस की वजह से आ रहे हैं। तो सल्फेट यहाँ पर है, सल्फेट यहाँ पर है, पोटेशियम यहाँ पर है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस पेपर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू।